लास्ट टॉपिक ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। एंड एज यू कैन सी द टॉपिक इज शॉक। तो शॉक क्या होता है? शौक कई तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो किसी चीज का शौक होना, घूमने का शौक है, खाने का शौक है, मोबाइल का मिलने का शौक है, एक तो ये शौक है, हम उस शौक की बात नहीं करेंगे। फिर दूसरा शौक वो होता है कि किसी ने कोई खबर सुनाई, मेरे को सुन के धक्का लगा, शौक लगा, उसकी भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा है बिजली का झटका लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक, उसकी भी बात नहीं करेंगे। तो विल टॉक समथिंग डिफरेंट अबाउट द शॉक। तो शॉक क्या है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम। The main manifestation is hemodynamic dysfunction in the body. बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम की हीमोडायनेमिक्स जब डिस्टर्ब होती हैं, फ्लो, वेलोसिटी, प्रेशर जब बदलते हैं, वो उस कंडीशन को हम शॉक कहते हैं। As you can see, and this is the definition: generalized inadequacy of the blood flow. Blood flow is there, but that is not adequate enough to supply the tissue demands of the oxygen. That is the central feature of the shock. Now this central feature, जो inadequacy पे ध्यान दीजिएगा, in some types of the shock condition, the cardiac output may be more than normal. We say normal cardiac output is 5 liters per minute. But in some cases of the shock, the 5 liter may not be sufficient enough to supply the adequate quantity of the nutrients and the oxygen. So shock will be there. So inadequacy of the blood flow is the central feature of the conditions of the shock. And because of the inadequacy, there is hypoxia, accumulation of the metabolites, mainly acid metabolites are there, with the production of the lactic acid, which compounds or complicates the condition of the shock. सब हम आगे बात करेंगे उसका. And if you see, if the patient goes into the shock, body itself tends to correct it. But if it is not sufficient enough, then outside intervention is required. And if the timely intervention is not there, body is not able to cope up with the shock condition, the shock, then it leads to what? Cellular dysfunction. हम किसी organ की बात नहीं कर रहे, organ बाद में आता है. It leads to the cellular dysfunction, irreversible multi-organ dysfunction. हम कहते हैं मरीज मर क्यों गया? Multi-organ failure is very common cause of the death under the conditions of the shock, resulting into the death. So that is the sequence if timely intervention is not done in certain types of the shock condition. सब में जरूरी नहीं है, वो हम आगे बात करेंगे. So what are the types of the shock? कई तरह के शॉक हो सकते हैं बॉडी में. The major we'll discuss in detail is the circulatory shock, where the dysfunction mainly is of the cardiovascular system. Second is the neurogenic shock, where nervous system is involved in the production of the shock. CVS may be functioning normally. Anaphylactic shock, resulting because of the allergic conditions, and septic shock. ये सीरियस कंडीशन है, सेप्टिक शॉक, इसकी भी बात करेंगे थोड़ी. So neurogenic shock, shock of neural origin, may arise because of several reasons. One of them is the deep general anesthesia. पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन करना है. एनेस्थेटिस्ट कई बार अवेयर नहीं होता, बातों में लग जाता है, ध्यान नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता. एनेस्थीसिया देना शुरू किया और वो बहुत ज्यादा डीप हो गया एनेस्थीसिया. दैट कैन रिजल्ट इनटू द फेलियर ऑफ द नर्वस मैकेनिज्म व्हिच आर रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर एंड द कार्डियक आउटपुट, एंड पर्सन मे गो इनटू द कंडीशंस ऑफ द शॉक. कई बार अभी भी होता है. Many patients die on table because of the deep general anesthesia. Sorry. The second is the spinal anesthesia. इससे भी हो सकता है. Spinal anesthesia, as you know, is given at the level of
L2 पे देते हैं, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो चुकी थी, आप CSF में डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं. Sometimes the spinal anesthesia lead to paralysis or dysfunction of the sympathetic nervous system, will result into severe fall in the blood pressure and patient may go into the shock. So spinal anesthesia can also result into the condition of the shock. Brain damage after accidents can result into the condition of the shock, that is neurogenic. And spinal transection, ये भी accident से ही होता है ज़्यादातर, या if the pressures are there because of the vertebral dysfunction, vertebral growth, slip disc, many conditions are there which can lead to the condition of the shock. So these are the basic causes of the neurogenic shock. The second one is the anaphylactic. Anaphylactic all, अरे क्यों बातें कर रहे हो इतनी भाई, मुझे ही बोल लेने दो ना थोड़ा. So anaphylactic shock results because of the allergies. अब एलर्जी कई तरह से हो सकती हैं. कईयों को खाने से एलर्जी होती है, माइनर होती है, इचिंग होने लग जाती है, शरीर में लाल लाल चिकत्ते हो जाते हैं, वो माइनर एलर्जीज है. किसी को कुछ खाया वॉमिटिंग होने लग जाएगी, वो भी एलर्जी है. बट अ सीवियर फॉर्म ऑफ द एलर्जी is due to generalized vasodilatation in the body because of release of the large amount of allergic substances. क्या रिलीज होता है? Histamine and histamine like substances which are strongest vasodilator in the body. So there is a mismatch between the capacity of the vascular system and the blood volume. Blood volume और capacity में जब भी mismatch create होगा, there will be fall in the blood pressure, decrease in the cardiac output, and patient will go into the condition of the shock. So histamine and histamine like substances are responsible for the anaphylactic shock. पहले ये बहुत होते थे, पहले हम लोग पेनिसिलिन का इंजेक्शन बहुत यूज करते थे. पेनिसिलिन का नियम है हमेशा कि जब भी आप इंजेक्शन देंगे तो पहले उसका एलर्जी टेस्ट करेंगे यहाँ पे, और अगर एलर्जी टेस्ट पॉजिटिव है तो आप वो इंजेक्शन नहीं देंगे, नेगेटिव ही आएगा तभी वो टेस्ट दिया जाएगा. अदरवाइज भी हम अभी भी बहुत सारे इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं, उसमें आपको पहले एलर्जी टेस्ट करना पड़ता है, वरना आपने नहीं किया, आपने इधर लगाया उधर मरीज निकल गया. सो बिफोर इंजेक्शन एंटी एलर्जिक और सेंसिटिविटी टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज हैज टू बी डन फॉर ऑल इंजेक्टेबल्स. प्रेफरेंशियली जो आईवी दे रहे हैं उनका तो करना ही चाहिए, आईएम में ज्यादातर नहीं देते. पेनिसिलिन में हमने देखा है कई बार इधर इंजेक्शन दिया और उधर मरीज एनाफिलैक्टिक शॉक में चला जाता है. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइव सच पेशेंट बिकॉज जो क्लिनिक्स में देते हैं ये लोग तो वहां सारी सुविधाएं नहीं होती किसी भी तरह की डील करने के लिए, तो पेशेंट को नुकसान हो जाता है उससे. थर्ड वन इज द सेप्टिक शॉक. सीवियर ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन by bacteria, mostly bacteria, it is of the bacterial origin, and Pseudomonas bacteria is very common and very potent to cause the blood borne infection. बैक्टीरियमिया कहते हैं उसको, और उसको बाद में भी हम सेप्टिसीमिया भी कहने लग जाते हैं. नॉर्मल और इंक्रीज, वो मैं आप बता रहा था, जो नॉर्मल और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट में भी नॉर्मल, मे बी मोर देन नॉर्मल, स्टिल द patient is under the condition of the shock because of mismatch of the blood volume and the vascular capacity. Capacity और volume में अगर mismatch होता है, वो इस condition में होता है, then cardiac output will be more than normal. The feature of this shock is high fever. Septicemia है, blood में infection पहुंच गया सीधा, तो fever होगा इसके अंदर. क्यों होगा fever? Why fever will be there? Bacteriemia causes fever. Why? रिलीज ऑफ एंडोटॉक्सिन्स. न्यूट्रोफिल्स फाइट कर रहे हैं उससे, मर रहे हैं बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स, एंडोटॉक्सिन रिलीज हो रहे हैं, वो आपके हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को चेंज कर रहे हैं और वो फीवर क्रिएट कर रहा है. मार्क्ड वाजोडाइलेटेशन, दिस इज फीचर ऑफ द सेप्टिक शॉक बेसिकली. या तो एनाफिलैक्टिक शॉक में वाजोडाइलेटेशन होता है या सेप्टिक शॉक में वाजोडाइलेटेशन होता है. अदरवाइज जो सर्कुलेटरी शॉक है उसमें सब में वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है, डायलेटेशन नहीं होता. स्लजिंग ऑफ द ब्लड. स्लजिंग का मतलब इन दिस कंडीशन द शॉक द आरबीसी टेंड टू, क्या कहते हैं उसको, रूल ऑफ फॉर्मेशन हो जाता है. पेरिफेरी में जाता है सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, आरबीसी टेंड टू अडेयर टू ईच अदर, तो छोटे छोटे माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्म हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करना शुरू करते हैं और कंडीशन को डिटेरियोरेट करना शुरू कर देते हैं. दैट इज
Slushing of the blood, slowing of the blood circulation, adhering of the RBCs together, leading to the blockade of the small vessels, further ischemia, hypoxia and deterioration of the cellular dysfunction and person may die. यूजुअली सेप्टिक शॉक का आउटकम बहुत अच्छा नहीं होता ज्यादातर पेशेंट के अंदर. एंड DIC, disseminated intravascular coagulation, because of the sepsis coagulating mechanisms are activated, and when coagulating mechanisms are activated there is initiation of intravascular clotting mechanism. इंट्रावेस्कुलर कोagulation जब होता है तो ब्लड वेसल्स में क्लॉट होना शुरू हो जाता है और वो आपके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करना शुरू कर देगा, पहली बात. दूसरी बात जो आगे भी हम पढ़ेंगे इसमें, that because of this intravascular coagulation there is use up of the coagulants in the blood. ब्लड में जो प्रोकोगुलेंट्स मौजूद है वो ज्यादातर काम आ जाते हैं इसकी वजह से, और फिर उनकी कमी हो जाती है, और उनकी कमी होने की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती है. उल्टा हो गया. आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द क्लॉटिंग देयर इज इंक्रीज इन द ब्लीडिंग टेंडेंसी बिकॉज ऑफ यूज्ड अप ऑफ द प्रोकोगुलेंट्स. वो सारे यूज अप हो गए, अब क्लॉटिंग नहीं हो सकती तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, एंड दैट फर्दर कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन ऑफ द सेप्टिक शॉक. नाउ वी कम टू द मेजर डिस्कशन. हम सर्कुलेटरी शॉक की डिटेल में बात करेंगे. सर्कुलेटरी शॉक इज शॉक अराइजिंग बिकॉज ऑफ द डिसफंक्शन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. बेसिकली यहां सीवियस डिफेक्ट में आ रहा है. दिस सर्कुलेटरी शॉक कैन बी ऑफ 4 वैरायटीज, 4 तरह का हो सकता है. हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, देयर इज लॉस ऑफ इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम, मतलब ब्लड वॉल्यूम का अगर लॉस हो रहा है तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है. इसके अलावा भी हेमरेज, फ्लूइड डिप्लीशन और फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन, दे ऑल कैन बी कॉज ऑफ द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. ये शायद इसकी डिटेल आगे आएंगी. नहीं. So hypovolemic shock can result into acute blood loss, पहली बात. acute fluid loss, continuous sustained vomiting अगर लगातार हो रही है और उसको करेक्ट नहीं किया गया, हाइपोवॉलीमिया क्रिएट कर देगा. कंटिन्यूस डायरिया, डिसेंट्री लगातार और करेक्ट नहीं कर रही है, फ्लूइड रिप्लेस नहीं हो रहा, दैट विल डू इट. सीवियर और अदर एक्सपोजर टू सीवियर वार्म एनवायरमेंट, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, दैट विल क्रिएट हाइपोवॉलीमिया. तो ऑल दीज कंडीशन एंड सीवियर बर्न्स ऑल्सो, जल गया शरीर ऊपर से तो आपका प्लाज्मा लॉस होगा बहुत ज्यादा और उसकी वजह से हाइपोवॉलीमिया हो जाएगा. सो हाइपोवॉलीमिया कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स resulting into decrease in the intravascular fluid volume. The second one is the cardiogenic shock, impairment of the heart pump, properly pumping activity नहीं हो रही, especially of the left ventricle. The regions of the left ventricle dysfunction resulting into a shock can be myopathic lesions, myocardial infarction, cardiomyopathies, dysarrhythmias, that is arrhythmias basically, obstructive and regurgitant lesions of the intracardial blood flow mechanics, अंदर से कोई गड़बड़ हो रही है, फ्लो आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, फेलोटेट्रोलॉजी, ऑल दे कैन लीड टू दी कार्डियोजेनिक टाइप ऑफ द शॉक. थर्ड इज द ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ द शॉक. फैक्टर्स एक्सट्रिंसिक टू द कार्डिक वेल्व्स एंड मायोकार्डियम, हार्ट के अंदर नहीं है बिल्कुल मगर बाहर है और सर्कुलेटरी सिस्टम में ही है वो. That is obstruction of the vena cava, that will hamper the venous return, तो कार्डियक आउटपुट नहीं आएगा पूरा उसके अंदर. पेरिकार्डियल टेम्पोनेड, ये टेम्पोनेड क्या हुआ, व्हाट इज टेम्पोनेड, नया शब्द आ गया. पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जब फ्लूइड भर जाए, ब्लड भी आ सकता है, इफ्यूजन भी आ सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है. अगर पेरिकार्डियम में फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो हार्ट डायलेट ही नहीं हो पाएगा पूरा, तो उसकी फिलिंग नहीं हो पाएगी. फिलिंग होगी तो इंजेक्शन के लिए वॉल्यूम ही नहीं मिलेगा, पेशेंट कैन गो इनटू द शॉक कंडीशन. सो दैट इज द टेम्पोनेड. पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से जो हार्ट में डिसफंक्शन क्रिएट हो रहा है वो आपका कार्डियक टेम्पोनेड कहलाता है. पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अनदर कॉज, दिस विल कॉज वासोकंस्ट्रिक्शन इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन और वो आपके रिटर्न को अफेक्ट करेगा. एंड कोएक्टेशन ऑफ द aorta, gradually left ventricle will fail because it has to exert pressure against the obstruction at the aortic level. तो ये obstructive causes है शॉक के.
और चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप ऑफ द शॉक, पैथोलॉजिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा सब जगह, सेप्टिसीमिया, एंडोटॉक्सिन सेकेंडरी टू स्पेसिफिक इंफेक्शंस इन द बॉडी एंड एनाफाइलेक्टिक, ऑल आर टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो ये 4 तरह के शॉक है जो सर्कुलेटरी शॉक में आते हैं। The major clinical features of the shock is a drop in the systolic blood pressure. Basically, it is the problem of the cardiac output. मगर cardiac output हम regularly measure नहीं कर सकते, आसान नहीं है measure करना, तो जो दूसरा indicative parameter है shock के लिए वो है continuous monitoring of the blood pressure. So if there is a fall in the blood pressure below 90, it can result into the shock. Low cardiac output and tachycardia, ये features हैं shock के. Tachycardia, because when the blood pressure is falling, just remember the Mary's law. What is that? What is Mary's law? Heart rate is inversely proportional to blood pressure. Heart rate is inversely proportional to blood pressure. It means if the blood pressure falls, heart rate will increase. If the blood pressure rises, heart rate will decrease. But as I said earlier also, if there is a primary change in the heart rate बढ़ता है, blood pressure बढ़ता है, heart rate घटती है, blood pressure घटता है. ये अलग relationship है. So low cardiac output and tachycardia. Vasoconstriction throughout the body, another main feature, especially in the skin and splanchnic areas. So splanchnic areas refers to the intestinal flow. Blood vessels to the intestine is the splanchnic circulation. वो हम पता नहीं लगा सकते, मगर स्किन का फ्लो प्रॉपर है कि नहीं वो पता लग जाएगा. So when skin vasoconstriction is there, another feature of the shock comes into action. Skin becomes cold and clammy. यहाँ हाथ लगाएंगे तो यहाँ स्वेटिंग से गीली गीली लगेगी स्किन आपको, और वो ठंडी होगी, क्योंकि वाजोकंस्ट्रिक्शन होने से जो बॉडी की हीट अंदर से ऊपर नहीं आ पा रही है लॉस करने के लिए, तो यहाँ ठंडा हो जाएगा. सो कोल्ड एंड क्लैमी स्किन इज द फीचर ऑफ द शॉक. Oliguria, because of decreased renal blood flow, because of shock, there is decrease in the GFR and oliguria is there. यूरिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा. कोल्ड वेट स्किन, जैसा मैं बता रहा था, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन को ये भी कहते हैं कोल्ड वेट स्किन. कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स, वो देखा जा सकता है, सफेदी आ जाती है यहाँ पे, ललाई नहीं रहती बॉडी के अंदर. मार्क्ड मसल वीकनेस, पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो बताएगा कि बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है गोइंग इनटू द शॉक, अदरवाइज इसको देखना थोड़ा मुश्किल है. एंड यूजुअली डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, एक्सेप्ट सेप्टिक शॉक जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है हमेशा. डिसोरिएंटेशन बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड सेरेब्रल ब्लड फ्लो, मेंटल डिसोरिएंटेशन इज देयर. कंफ्यूज होगा, आप प्रॉपर्ली अपना नाम नहीं बता पाएगा, कहाँ रहता है वो नहीं बता पाएगा. सो देयर इज अ डिसोरिएंट, सेंसोरियम is disturbed, we can say, and metabolic acidosis is there. How do you know patient is under the metabolic acidosis? How do you know it? It manifests clinically, very typically. metabolic acidosis में मरीज है, कैसा पता लगेगा? हाइपरवेंटिलेशन होगा, बिल्कुल ठीक है. एसिडोसिस will result into hyperventilation. So, in cases of the circulatory shock, the central feature is acute circulatory insufficiency. And secondly, this is the basic point, but always remember, there is a mismatch between the blood volume and the volume of the vascular bed. Vascular bed की capacity कितनी है और blood volume कितना है, यही central theme है कुल मिलाकर के shock की. Any condition creating mismatch between the vascular capacity and the blood volume will result into the condition of the shock. अगर blood volume कम होता है, capacity उतनी है, तो blood pressure गिरेगा, cardiac output गिरेगा. अगर capacity बढ़ा दें, blood volume normal है, तो भी वही condition आएगी. So main thing is, and secondly, because all the regulatory mechanisms in the body, within the body itself, which are acting on the negative feedback mechanism,
they are always trying to correct one of the two conditions or both conditions. या तो वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करती हैं या वास्कुलर कैपेसिटी को घटाने की कोशिश करती है, जिससे कि मिसमैच खत्म हो जाए और ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहे। और जो हम बाहर से ट्रीटमेंट देते हैं उसका भी एम यही है। द सेम एम इज देयर व्हेन वी इंटरवीन फ्रॉम आउटसाइड। मेडिकल इंटरवेंशन में क्या करते हैं हम? फ्लूइड देंगे, ब्लड देंगे, वासोकंस्ट्रिक्टर देंगे, ऑक्सीजन देंगे। ये सारे करेक्शन इन दो के पॉइंट के लिए ही है कि या तो हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे या हम कैपेसिटी को चेंज करेंगे, और दोनों को चेंज करके हम जो मिसमैच है उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह से पेशेंट में रिवाइव अगेन। तो बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच देयर इज अ टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन, परफ्यूजन कम हो जाता है, पेशेंट गोज इनटू द शॉक। सो आउट ऑफ द वेरियस कंडीशंस ऑफ द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की हम बात कर रहे थे, डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग, बर्न सब में हो गया, मगर हम अब आते हैं हेमरेज की वजह से जो शॉक क्रिएट होता है। तो हेमरेजिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एज आई सेड इज आइदर बिकॉज ऑफ द हेमरेज, vomiting, diarrhea, sweating, burns, trauma, and same thing, mismatch between the volume and the capacity of the vascular system. Now clinically, the circulatory shock can be divided into or can be categorized into 3 stages. ये 3 तरह का नहीं है, 3 stages है उसकी। One is the compensated type of the shock. Second is non-compensated type of the shock, and third is the irreversible type of the shock. पहला है compensated, दूसरा है uncompensated, and third is the irreversible type. Compensated type of the shock means that when the patient, if he is going into the shock, then the body itself, without outside intervention, body itself is capable of returning the system back to the normal level. Then we say patient is compensated. बाहर से किसी इंटरवेंशन की आपको जरूरत नहीं है। बॉडी की जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है रेगुलेटरी, वो सारी की सारी एक्ट करके और ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट को नॉर्मल पे वापस ले आएंगी। इस तरह का शॉक कहलाता है कॉम्पेंसेटेड टाइप ऑफ द शॉक। कब होता है ये? इस तरह का शॉक होता है जब 10 से 15% एक्यूट ब्लड लॉस हो। माइंड इट, हम जब, जैसा मैंने पहले बताया था, ब्लड डोनेट करने जाते हैं, करीब करीब 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो 10% के करीब ब्लड चला जाता है बॉडी का, बट नथिंग हैपन। वो ग्रेजुअली निकलता है उसमें से और 24 घंटे के अंदर करीब करीब वापस फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, शॉक में नहीं जा रहा मरीज। मगर अगर एक्यूट लॉस है, सडनली मान लो बड़ी आर्टरी कट गई, 10% ब्लड निकल गया, तो आपका पेशेंट शॉक में जा सकता है, बट दैट इज इन दी कंपेंसेटेड वैरायटी। Uncompensated is progressive type of the shock. Uncompensated is progressive type. It means body is trying to regulate the blood pressure and cardiac output to normal, but they are not sufficient enough. Those mechanisms are not sufficient enough to bring back blood pressure and cardiac output to normal level. So if they are not corrected from outside, the patient will progress into the further variety of the shock. वो सीवियरिटी में जाता चला जाएगा। मगर अगर यहाँ पे हम इसको इंटरवीन करें आउटसाइड से, देन वी कैन ब्रिंग बैक पेशेंट टू द कॉम्पेंसेटेड स्टेज एंड द पेशेंट विल रिकवर। और अगर आउटसाइड मेडिकल इंटरवेंशन नहीं करें तो इस शॉक प्रोग्रेस करता हुआ चला जाएगा और इरिवर्सिबल कंडीशन में चला जाएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द कॉम्पेंसेटेड, सॉरी नॉन कॉम्पेंसेटेड और प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ द शॉक। ये प्रोग्रेस करता हुआ चला जाएगा। कब होगा ये? व्हेन देयर इज लॉस ऑफ 15 to 25% ऑफ द ब्लड लॉस। अगर इतना ब्लड लॉस हो जाए तो पेशेंट जो है अनकॉम्पेंसेटेड और प्रोग्रेसिव शॉक में चला जाएगा एंड मेडिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। टाइमली इंटरवेंशन रिवर्ट्स टू द कॉम्पेंसेटेड स्टेट। एंड थर्ड इज द इरिवर्सिबल शॉक। इरिवर्सिबल के आगे हमने लिख दिया रिफ्रैक्टरी, नॉन रेस्पॉन्सिव। आप कितना ही कुछ कर लीजिए, अगर मरीज इस कंडीशन में चला गया तो ज्यादातर मरीज जो है बच नहीं पाते, निकल लेते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इरिवर्सिबल और refractory type of the shock. When it occurs, when there is a loss of more than 35% of the blood volume, 35% से ज्यादा अगर ब्लड लॉस हो गया तो फिर पेशेंट को रिवाइव करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। दैट इज द डायग्राम वी हैव अर्लियर सीन। ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में हमने देखा था इस डायग्राम को, शोइंग द लॉस अगर 10% है तो कुछ नहीं हुआ, फुल्ली कॉम्पेंसेटेड, हार्डली एनी चेंज इन द
blood pressure, but there is a slight decrease in the cardiac output. 20% पे 25% पे गिरना शुरू हो गया, अगर यहाँ पे हम आउटसाइड इंटरवेंशन करें, then the patient will be revived. Otherwise, it will go on progressing to the next condition, the shock, and blood pressure and CO, cardiac output, will go on falling. And at this point, we have seen there is a CNS ischemic response which tend to increase the blood pressure, but it is for no use. It is last ditch stand for the regulation of the blood pressure and cardiac output. ये हो गया आपका. So what are the compensatory mechanisms when the blood volume loss is 10 to 15% or 15 to 25%? These mechanisms will start acting immediately. These mechanisms are same. Compensatory mechanisms of the shock are same, that is, or those which are regulating the blood pressure. वही mechanisms है सारी, अलग कुछ भी नहीं है इसके अंदर. So there is a baroreceptor reflex comes into action immediately whenever there is a fall in the blood pressure, which causes stimulation of the sympathetic nervous system. And when sympathetics are stimulated, various actions are initiated into the body, as you know. There is an increase in all types of the activity of the heart. Heart rate increases, force of contraction increases, conductivity increases, excitability increases. All they causes more force of contraction and more ejection of the stroke volume and the cardiac output. ये पहला हुआ sympathetic का effect heart के ऊपर. Second effect is on the blood vessels, arteries and arterioles. There is a strong vasoconstriction throughout the body. अब ये vasoconstriction थोड़ा different है normal regulation से, because when if the person is in shock, then vasoconstriction occurs throughout the body. Renal vasoconstriction will be there, splanchnic vasoconstriction will be there, cutaneous vasoconstriction will be there. So only two vascular beds are spared of vasoconstriction. One is the central nervous system and second is the coronary arteries. इसके अलावा जितने भी vascular bed है सब में vasoconstriction होगा sympathetic stimulation की वजह से. Third is effect on the veins. Veins also contains tunica media, smooth muscle fibers are there. So there is venoconstriction also throughout the body, and constriction of the veins, because we know that large amount of the blood is contained into the venous side of the circulation. सबसे ज्यादा volume blood का कहाँ होता है? Veins में होता है. So the purpose is to translocate this volume of blood from the venous system into the arterial side में पहुंचाना है इसको. So venoconstriction करके हम इस blood को dislodge कर रहे हैं, translocate कर रहे हैं arterial side में, so that it tend to increase the effective blood volume and flow to the vital areas of the body. So these are the effect of sympathetic stimulation brought about by baroreceptor reflexes activated as a result of fall in the blood pressure, which is the one condition of the shock. The second mechanism is the renin-angiotensin system, aldosterone system and ADH mechanism. इसकी हम already detail में बात कर चुके हैं. These conditions, देखिए पहली mechanism क्या कर रही थी? It is trying to decrease the vascular capacity. यहाँ पे volume में बदलाव नहीं आ रहा. Baroreceptor reflex is causing decrease in the vascular capacity by causing vasoconstriction. तो जो mismatch हुआ है volume और capacity में, उसको correct कर रही है एक तरह से सिर्फ. While this mechanism, aldosterone, angiotensin and ADH, they are trying to act on both parameters. ये vasoconstriction भी कर रही हैं, तो vascular capacity घटा रही हैं. उसके अलावा they are causing retention of the water. Aldosterone, sodium absorption, water absorption is there. ADH, water absorption. Angiotensin second, water absorption, sodium absorption. So they are causing increase in the volume along with decrease in the vascular capacity. So these mechanisms are very effective in bringing back the blood pressure and cardiac output to the normal level. ये सारी negative feedback mechanisms है, and they are trying to regulate or restore the blood pressure and cardiac output. And thirdly, absorption of the fluid from interstitial compartment and the GIT.
फ्लूइड इज गेटिंग ट्रांसलोकेटेड, क्योंकि ब्लड प्रेशर घट रहा है तो आर्टीरियल एंड पे कैपिलरीज पे फिल्ट्रेशन कम होगा और वीनस एंड पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ेगा। तो टिश्यूज से जो फ्लूइड है वो ब्लड वास्कुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है, इट विल इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। इफ द शॉक is progressive type, 15 to 25% of the blood loss, without therapy it becomes steadily worse until death। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट स्टेज, आ गई प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ द शॉक, वेयर आउटसाइड इंटरवेंशन इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड if the patient is to survive। Body's negative feedback mechanisms are not sufficient enough to bring back blood pressure and cardiac output to the normal level। And if this goes on happening, then a vicious cycle develops, progressively decreasing the cardiac output, cardiac depression and other things are happening। So at this stage what is happening, two things are happening, we can say। On one side, negative feedback mechanisms are operating and they are trying to bring back blood pressure and cardiac output to the normal level by decreasing the capacity and increasing the volume। But if the loss is greater and because of the tissue hypoxia and ischemia, positive feedback mechanism start acting। अब दो तरह की मैकेनिज्म आ गई, नेगेटिव फीडबैक थी जो रेस्टोर करने की कोशिश कर रही थी, अब चूंकि हाइपोक्सिया और इस्कीमिया इतना ज्यादा हो गया है कि नाउ द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट कमिंग इनटू एक्शन एंड दे टेंड टू डिटीरियोरेट द पेशेंट कंडीशन। नाउ it will be depending upon the balance of these two situations। एक तरफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है और एक तरफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। नेगेटिव वाली रेस्टोर करने की कोशिश कर रही है, पॉजिटिव वाली डिटीरियोरेट करने की कोशिश कर रही है। आपका मेडिकल इंटरवेंशन डिटरमिन करेगा कि पेशेंट वापस सर्वाइवल में जाएगा या इरिवर्सिबल शॉक में जाएगा। सो इट इज बैलेंस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स which will determine the ultimate outcome for the patient। So that vicious cycle progressively decreasing the cardiac output are cardiac depression। हार्ट धीरे धीरे काम करना कम कर देगा, क्योंकि जब पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो कोरोनरी सर्कुलेशन में भी ब्लड कम जा रहा है, देयर इज डिक्रीज्ड कोरोनरी फ्लो, कार्डियक हाइपोक्सिया इज देयर। हाइपोक्सिया तो हार्ट का फंक्शन और डिप्रेस हो जाएगा और धीरे करेगा और कार्डियक आउटपुट कम होगा और कोरोनरी सर्कुलेशन कम होगा। सो विशियस साइकिल डेवलप्स एंड that ultimately lead to the cardiac depression and decrease in the contractility, and ultimately the heart may fail, resulting into the death of the patient। The second is the vasomotor failure, because of the continuous hypoxia, क्यों ब्लड लॉस ज्यादा हो चुका है, continuous hypoxia to the vasomotor center causes initially strong stimulation of the vasomotor center, but ultimately neurons fail, वहां से डिस्चार्ज आना बंद हो जाता है, उसको हम कहते हैं vasomotor failure। And if the vasomotor failure is there, sympathetic tone disappears, and because of this sympathetic tone disappears, there is a strong vasodilatation, passive vasodilatation throughout the body, resulting into increase in the vascular capacity। blood volume अभी भी उतना ही है, मगर there is a fall in the blood pressure and cardiac output। release of toxins by the ischemic tissues, histamine, serotonin, tissue enzymes, ये प्रोटोलिटिक एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, तो दे आर कॉजिंग टिश्यू डैमेज एवरीवेयर एंड रिजल्टिंग इनटू द प्रोग्रेशन ऑफ द शॉक। तो ये सारे कारण जो आ रहे हैं शॉक के प्रोग्रेशन के कारण है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से सारी की सारी। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेस्टाइनल हाइपोपरफ्यूजन। कहा गया? हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द इंटेस्टाइन्स, म्यूकोजल बैरियर डिस्टर्बेंस, स्टमक में ब्लड फ्लो कम होगा, म्यूकोजल बैरियर खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे एसिड एक्ट करना शुरू कर देगा, एसिड विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग द स्टमक वॉल इटसेल्फ, वो आपका ब्लीडिंग करेगा। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस हाइपोक्सिया, अनदर थिंग हैपेंस इन द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन का जो क्या एपिथेलियम है उसमें फ्लो कम होता है, उसमें हाइपोक्सिया हुआ तो एपिथेलियम डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है, एपिथेलियम स्लफिंग होनी, मतलब वहां से उखड़नी शुरू हो जाएगी, उसमें ना sloughing of the epithelium will be there, and that sloughing will lead to exposure of the blood vessels, further bleeding will be there, will further complicate the situation। So intestinal bleeding
will occur because of the continuous hypoxia. Endotoxins are absorbed from the intestine because of this vasodilatation and ultimately resulting into the cardiac depression. Vasodilatation in the precapillary bed also resulting into the अरे क्यों बातें कर रहे थे? And ultimately generalized cellular deterioration. हर सेल में डिसफंक्शन शुरू हो गया, पोटेशियम बढ़ गया लोकली, एटीपी घट गया, रिलीज ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स आर देयर, तो टिश्यूज में सेल्स में डैमेज होना शुरू होता है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं मिल रही, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू होता है सेल के अंदर, सेल स्वेलिंग होनी शुरू होती है और सेल डेथ शुरू हो जाती है अल्टीमेटली। तो दैट अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। नोट अगेन, थर्ड इज द इरिवर्सिबल टाइप ऑफ द शॉक. This is the stage when even outside intervention, whatever you may do, will not be able to restore the cardiac output and blood pressure to the normal level. Despite therapy, circulatory system continues to deteriorate and death ensues. Marked tissue hypoxic damage is there, endothelial dysfunction, adhesive molecules are produced, neutrophils, macrophages, inflammatory changes are there, again lead to the fluid loss into the tissues. Progressive acidosis is there. धीरे धीरे acidosis create हो गया, and this acidosis creates another problem. Because of the acidosis, the vasoconstrictor effect of catecholamines are depressed. जो बॉडी में कैटेकोलामाइंस रिलीज हो रहे थे नॉर्मली कंट्रोल करने के लिए, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, वो वाजोकंस्ट्रिक्टर कर रहे थे, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर एसिडोसिस होने के बाद में स्मूथ मसल्स आर रिलेटिवली नॉन रेस्पॉन्सिव टू द कैटेकोलामाइन, तो उनका इफेक्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाता है पेशेंट. माइक्रो सर्कुलेशन फेलियर, प्लाज्मा लीक्स, प्रोटीन लीक्स इनटू द इंटरस्टिशियम, अगेन कॉम्प्लिकेटिंग द सिचुएशन, एंड एडवांस्ड डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, जिसकी मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी, दैट विल लीड टू द फर्दर ब्लीडिंग इनटू दैट. ये वैस्कुलर क्लॉटिंग हो रही है मगर अल्टीमेटली क्या होगा, इससे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी टिश्यूज के अंदर, और ब्लीडिंग होगी तो वैस्कुलर वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम और ज्यादा घट जाएगा और शॉक इरिवर्सिबल हो जाएगा. तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म, जस्ट टू समराइज दैम, बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस, कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस, सीएनएस इस्केमिक रेस्पॉन्स, ये सब काम आती हैं शॉक के दौरान. Humoral mechanisms are catecholamines are there, renin-angiotensin system, aldosterone system, antidiuretic hormone, reverse stress relaxation. What is the reverse stress relaxation? What is stress relaxation? हमने पढ़ा था इसके बारे में, एक डायग्राम भी देखा था. वॉल्यूम हटाया, ब्लड प्रेशर नीचे आ गया, वापस नॉर्मल आया, वॉल्यूम घटाया, वापस नीचे. When you infuse, आपने किसी पेशेंट को, जैसे मेरे को है, जरूरत नहीं है, एक बोतल चढ़ा दिया आपने सलाइन की, 500 मिलीलीटर फ्लूइड दे दिया, कहां जाएगा वो? थोड़ी देर बाद में ब्लड प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आएगा, इमीडिएटली थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और वापस नॉर्मल हो जाएगा. ये फ्लूइड कहां गया? कुछ तो यूरिन में जाएगा, ठीक है, मगर बाकी सारा वहीं का वहीं है बॉडी में. सो ब्लड वेसल्स, स्पेशली वेन्स, आर रिलैक्सिंग अराउंड दिस इंक्रीज्ड वॉल्यूम टू प्रिवेंट एनी राइज इन द प्रेशर. जो वेन्स जो हैं उसमें जो स्मूथ मसल्स है वो ग्रेजुअली रिलैक्स करते हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है अंदर से, फ्लूइड बढ़ा दिया आपने, तो दीज मसल्स आर रिलैक्सिंग एंड दे आर अलाउइंग द फ्लूइड टू गेट एक्यूमुलेटेड देयर विदाउट मच राइज इन द प्रेशर. दैट इज स्ट्रेस रिलैक्सेशन. अब रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन का मतलब है कि आपने वॉल्यूम निकाल लिया इसमें से. When you remove the volume, then gradually blood vessels contract around the reduced volume, so that the ratio of the volume and capacity is maintained. So that is reverse stress relaxation, that is trying to maintain the blood pressure and cardiac output. And then capillary fluid shift mechanism, ये भी हम देख चुके हैं. Because of decrease in the blood pressure, there is less fluid filtration at the arterial end and more is absorbed at the venous end. So there is more translocation of the fluid from the extravascular compartment to the intravascular compartment. Fluid restore होने की कोशिश होती है,
रिवर्स मूवमेंट होता है और वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करता है। एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म्स आर देयर। तो जब भी पेशेंट शॉक में होता है, ज्यादातर में जो सबसे ज्यादा डर होता है वो है रीनल शटडाउन का, बिकॉज इफ द ब्लड प्रेशर रिमेन्स लो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम द किडनी फंक्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग, और वहां से फिल्टर होना करीब करीब बंद हो जाता है। और अगर काफी देर तक, कुछ दिनों तक 24 घंटे 48 घंटे बंद रहे, देर में भी कंप्लीट रीनल शटडाउन और रीनल फेलियर में चला जाएगा पेशेंट। दैट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन। So renal body fluid system tend to maintain by absorbing more water, more fluid returning into the body and restoration of the red cell mass। धीरे धीरे चलता है, बोन मैरो से आएगा, हाइपोक्सिया है, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगी, ब्लड आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ेगा और वो ब्लड को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। These are the positive feedback mechanisms leading to the irreversible type of the shock. Cardiac depression we have talked about, vasomotor failure is there, endorphins and enkephalins are released, which depresses the activity of the vasomotor center and depresses the activity of the sympathetic nervous system. Acidosis is there and sludging of the blood is there. ये सारी की सारी आपकी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, ये सब पॉजिटिव में आ रही हैं। फ्लूइड लॉस विल बी देयर, डिप्रेस्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल फंक्शन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, डिक्रीज्ड फैगोसाइटोसिस, डिक्रीज्ड ऑप्सोनिक प्रोटीन्स इन द शॉक, release of toxins from the, yes, all these are positive feedback causing deterioration in the condition of the shock. Failure to neutralize endotoxins and cardiac depression will be there. DIC, as I said, is a major complicator of the condition of the shock. Initial hypercoagulability, ज्यादा blood clot हो रहा है, शुरू में बढ़ रहा है clotting का mechanism. Use up coagulants in the blood, later hypocoagulability, intestinal bleeding and loss of blood, and irreversible shock is there. Generalized cellular depression, failure of sodium potassium pump, intracellular edema, depressed myocardial activity, mitochondrial activity, release of lysosomal enzymes, cell death will be there because of that, peripheral circulatory failure and multi-organ failure. तो ज्यादातर पेशेंट में कहता है ये पीसीएफ में चला गया, मतलब पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर हो गया इसका, vessels are not responding at all to any type of the pressure raising agents, adrenaline, noradrenaline, dopamine, किसी का कोई असर नहीं हो रहा, पीसीएफ में गया मरीज और पेशेंट इज गोइंग इनटू मल्टी ऑर्गन फेलियर। ये आपका शॉक का कंडीशन दिखाया क्या होगा। ट्रांसफ्यूजन देने के बाद में भी क्या हुआ, ये शॉक आ गया, इरिवर्सिबल कंडीशन में आ गया, यहाँ पे आपने फ्लूइड देना शुरू किया, जैसे कुछ बड़े नेता को जब गोलियां मारी जाती है तो 50, 30, 40 गोलियां अंदर गई, अस्पताल में ले जाते हैं, बोतल पे बोतल चढ़ाते रहते हैं, 15, 20, 25, 30, 50 बोतल चढ़ा देते हैं, बट नथिंग हैपन्स। डॉक्टरों को भी पता है कि नहीं होगा कुछ भी, मगर करना पड़ता है वो। वी आर ट्राइंग टू असिस्ट द सिस्टम टू करेक्ट इटसेल्फ टू द नॉर्मल, बट इट यूजुअली डज नॉट हैपन। इतना सारा फ्लूइड देने के बावजूद भी यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पर वापस गिर गया है प्रेशर, नहीं सर, system has failed completely. System is not responding to this increase in the volume at such a stage. अगर ये पहले करते तो शायद इसका इफेक्ट आता, मगर अब कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। So what is the basis of the treatment of the shock? जो पेशेंट शॉक में है उसके पीछे फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है ट्रीटमेंट का। पेशेंट शुड बी, अरे तुम इतने ही बेवकूफ बदतमीज हो क्या, तुम बोले चले जा रहे हो। Patient should be kept at room temperature preferably, raising the foot end of the bed, पैरों को ऊपर करेंगे जिससे कि यहाँ पे कूलिंग ना हो ब्लड की और सेंट्रल सर्कुलेशन के लिए ब्लड ज्यादा मिले आपको। फ्लूइड रिप्लेसमेंट इमीडिएटली करना पड़ेगा आपको, पेशेंट में भर्ती हुआ है तो आप ड्रिप चालू करनी पड़ेगी। ड्रिप चालू करना, सेंट्रल लाइन बनाना ये भी जरूरी है, क्योंकि ड्रिप फ्लूइड के अलावा भी आपको बहुत सारी दवाइयां इंट्रावीनस देनी पड़ती हैं, उसके लिए आपको लाइन अवेलेबल होनी चाहिए इमीडिएटली डालने के लिए। सो आईवी लाइन इज टू बी पुट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना चाहिए।
प्रेफरेबली अगर अवेलेबल है तो होल ब्लड आप देंगे, अवेलेबल नहीं है तो प्लाज्मा देंगे, अवेलेबल नहीं है तो डेक्स्ट्रॉन देंगे, और अवेलेबल नहीं है तो जीएनएस ही दे देंगे। कुछ तो देंगे आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। जीएनएस मींस ग्लूकोज नॉर्मल सलाइन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं अगर पेशेंट डिहाइड्रेशन का है तो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच नीड टू बी डन। देन द मेजर डेफिशिएंसी वाज हाइपोक्सिया, सारा प्रॉब्लम उसी की वजह से था। तो यू हैव टू स्टार्ट द ऑक्सीजन थेरेपी। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स हैज टू बी गिवन। बॉडी अपना काम कर रही है, सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी बाहर से आपको असिस्ट करना पड़ता है जिससे कि काम ज्यादा बेटर हो। द सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स आर नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन। एड्रेनालिन यूजुअली नहीं देते, ये एड्रेनालिन कई जगह पे वाजोडायलेटेशन करती है बॉडी के अंदर, वो हम नहीं चाहते। शॉक में वो नहीं चाहते, हम वाजो कंस्ट्रिक्शन ही चाहते हैं, इसलिए नॉरएड्रेनालिन ड्रिप देते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉरएड्रेनालिन कभी भी डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं की जाती किसी भी रूप में। इट हैज टू बी गिवन इन द ड्रिप फॉर्म। ड्रिप में मिला के ही देते हैं, मिक्स करके। डायरेक्ट इंजेक्शन है तो आईवी लगाते हैं ना आईएम लगाते हैं, कभी नहीं लगाना चाहिए। ओके, तो आईवी ड्रिप हैज टू बी गिवन। इसी में ड्रिप में डालते हैं इस सॉल्यूशन को। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दे आर स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये हार्मोन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनका डायरेक्ट वैस्कुलर पे कोई इफेक्ट नहीं है, बट दे आर इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजर ऑफ द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स। जो सेल फंक्शन डिटीरियोरेट हो रहा है, लाइसोजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, सेल डेथ कर रहे हैं, उन लाइसोजाइम्स की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है जिससे एंजाइम रिलीज ना हो और सेल डेथ को प्रिवेंट किया जा सके, पहली बात। सेकेंडली, these glucocorticoids enhance the effect of catecholamines on the vascular smooth muscle। सिर्फ एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन देने से जितना वाजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था उससे ज्यादा वाजो कंस्ट्रिक्शन आ सकता है अगर आप वाजोप्रेसिन में और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड साथ दें तो। इफ यू सपोर्ट देम विद द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बेटर इफेक्ट विल बी देयर, better vasoconstriction will be there of the catecholamines on the vascular smooth muscle। Vasopressin and ultimately wait and watch। You can't do anything if the patient is in irreversible shock। आप सिर्फ उसको आईसीयू में रख करके और दिखा सकते हैं कि मरीज की सांस चल रही है, मरीज जिंदा है, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है। चलिए, ये आज का काम खत्म हुआ, अब ये टाइम भी हो गया। ये भी टॉपिक है शायद, उसमें तुम पढ़ लेना इसको, मेरे को मौका मिलेगा, क्लास मिलेगी तो आगे पढ़ा दूंगा इसको। हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर, फॉरवर्ड फेलियर, बैकवर्ड फेलियर, डायस्टोलिक फेलियर, सिस्टोलिक फेलियर, बहुत तरह के क्लासिफिकेशन है इसके अंदर।